So let me change my pen. Okay. So first of all, uh, before starting the session, let me recap the things what we have done in the last session because that is important for this concept paging. Okay. In the concept of paging, we will be inquiring the concept of what we have seen earlier. Like we have seen this memory placement strategies and memory memory management techniques. Okay, if you remember this memory management technique, if I'm not wrong, then we are repeating this particular topic again and again. I think 2 3 times we have already repeated this topic. Okay, but still, as time required this particular topic to be repeat once again. So according to the techniques, okay, according to this particular one, memory management techniques can be put into two domain. One is for unit programming, second is for multi-programming. Why I'm repeating it? Because now we are going to move into the another section. In multi-programming techniques, we have seen the contiguous allocation, and the second one we have seen is non-contiguous allocation. Okay, in the contiguous allocation, one after another. याद है आपको? In non-contiguous allocation, the process will get their space in the main memory, anywhere in the main memory. Okay, this is not compulsory that they will be getting the memory or they will get the space one after another. So non-contiguous allocation. And if you remember, if you have not forgot, then in contiguous allocation, we have seen multi-programming with fixed number of tasks or fixed partitioning scheme. Okay, fixed partitioning scheme, or we can also call it as a static partitioning scheme. Okay, and the second one was multi-programming with a variable number of tasks, or we can say variable partitioning scheme. Okay, so ये दोनों चीज हम लोग ने देखा था. और नॉन कॉन्टिजियस के अंदर हमारा है पेजिंग और सेगमेंटेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. तो सेगमेंटेशन को तो मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा इंट्रो इंट्रो बता दूं. पेजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेजिंग पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं. सेगमेंट का आपको मैं कंपेयर बता दूं. ओके, तो ये मैंने आप लोगों को मेमोरी मैनेजमेंट के डायग्राम से उसकी कैटेगराइजेशन. ठीक है. So your PMs under the non-contiguous allocation. So your paging allows generators, मतलब कि in non-contiguous allocation, it permits us to allocate the space for the processes and memory space to be non-contiguous. Okay? मतलब हम लोग परमिट कर रहे हैं कि अगर आपको जहां पर भी स्पेस देना स्पेस दे दो कोई इशू नहीं. बिकॉज दिस इज द नॉन कॉन्टिगियस एलोकेशन. ओके, सो नॉन कॉन्टिगियस एलोकेशन परमिट अस. ओके, ध्यान ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में बार बार बोलूँ. सो ये फिर हम लोग ने सारा देखा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसका सोल्यूशन देखे, फिर उसके बाद में फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी देखे, एंड देन ये सारा हम लोगों ने देखे. फिर उसके बाद में वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम के बाद में आफ्टर दैट we got this topic that is memory placement strategies. In that we have learned about the first fit, best fit, and worst fit. I think it was very clear. These placement strategies, important question for 10 marks in Mumbai examination. Okay, and after that we took a number of example. I think one more example for all the strategies, and after that when it completes, so हम लोग ने फिर एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था. तीनों का एग्जांपल लेके वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल अवेलेबल स्पेस एंड द यूज स्पेस. ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया. ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग पेजिंग. ओके, सो ये आप लोग को पहले ही दिमाग में रखना चाहिए, दिस इज द नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन स्कीम. नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन स्कीम. And you also remember that in non-contiguous allocation scheme, the assignment of memory, the memory placement, मतलब जो process है, those process will be getting the memory at any location. Okay, so it is not mandatory that if the process हो सकता है, in this particular paging concept, we are going to divide the process into number of chunks. Okay, remember my statement, mark my words. Okay, our process is going to be divided into number of chunks, and our memory is also divided into number of chunks. Okay, और जहां जहां पर जैसे देखो जहां पर चीजें आप जितनी छोटी करो उतना ज्यादा एडजस्टमेंट होती है. ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग पेजिंग में यूज करने वाले हैं. ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर. ओके, आई एम श्योर अबाउट. ओके, so we are having, if we are having this particular slots. Okay, like this, तो ये मेरे जो स्लॉट्स है मैंने इसको अलग अलग डिवाइड किया हूँ. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ योर प्रोसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ चंक्स, से
two chunks. Okay, so maybe your one chunk of a single process, your process one is divided into two chunks. Okay, that is A and B. So maybe A part will be placed at this location and B part will be placed at this location. So this is called as a non-contiguous allocation scheme. Okay, not like कि भाई A यहाँ पर है तो B भी यहाँ पर होना चाहिए उसी के बाजू में. That is the contiguous allocation scheme. And the diagram which is showing this particular A and B over here is a non-contiguous allocation scheme. Okay, I hope this is clear to everyone. Okay, this concept we are going to implement. Okay, with the help of this particular concept, we are going to see this concept, that is paging. Okay, so let us take the help of this particular diagram जो मैंने यहाँ पर किया already. Okay, so basically this is the solution for external fragmentation. Sometimes it is called which are the complementary techniques. Okay, this paging and segmentation. Paging and segmentation are the complementary techniques. Complementary techniques. Okay, इसमें लिखा नहीं जाता जल्दी से. Okay, so complementary techniques है, that is paging. Okay, अब पेजिंग हम लोग को क्या 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 अलाव करता है ये हम लोग को ध्यान से, ये स्टेटमेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. Okay, so so I'm repeating this particular statement for paging is that it permits physical address space of processes to be non-contiguous. Okay, you will see and you will hear this particular statement every time. Okay, so it permits the paging permit physical address space of a process to be non-contiguous. Now, what is the meaning? पहले हम लोग इसको लिखते हैं. It permits address space of the process, address space of processes. Okay, not for a single process, we are talking about multiple processes. So for of processes, it permit, यहाँ पे मैंने physical लिखना भूल गया, so it permits physical address space of a processes to be non-contiguous. To be non-contiguous. Okay, if someone has understood the statement, then it's okay. Those who have understood, I'm repeating it. Okay, non-contiguous. Okay, what does this statement address physical address spaces of the processes? Okay, so for example, we have in this process T1, we have this process T2, and we have this process T3. Okay, just imagine. So for this particular process T1, we have divided into two chunks, that is A and B. For process 2, we have divided into say three chunks. Okay, C, D, and E. Okay, and for process 3, we have divided into, I think, F and G. Okay, so this is the divide. It permits. I will be repeating this statement again and again so that you will remember the statement. The paging permits physical address space. This is the physical address space. Okay, तो ये हमारा address spaces है. Physical address space of processes to be non-contiguous. मतलब इनको आप प्रोसेस के अपने चंक्स बनाए तो इनको क्या करेंगे, ए को यहाँ पर डाले, बी को यहाँ पर डाले, सी को मे भी यहाँ पर डाला मैंने और बी यहाँ पे डाल. अगर अवेलेबल स्पेस है तो मैं डाल दूँ, हो सकता है. जरूरी नहीं कि नॉन कॉन्टिजियस बोले तो इधर इधर उधर ही उठा के फेंकना. ओके, जरूरी नहीं कि अगर मैंने कहा नॉन कॉन्टिजियस इट मीन दैट कि आपको एक यहाँ एक वहां ही करना है. मे भी एक साथ में भी आ सकते हैं. तो सी डी एंड ई यहाँ पर आपका हो गया. ठीक है, उसके बाद में आपका प्रोसेस वन कंप्लीट, प्रोसेस वन हो गया, प्रोसेस टू हो गया. now for process 3 which are having two chunks, that is f and g. remember f and g. तो f को मैंने यहाँ प्लेस किया, अब आगे जगह है नहीं है तो मैं कहाँ प्लेस करूँ, आगे छोड़ के जगह प्लेस कर दो. बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से हम लोग ने मान के चले ना कि द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेसेस टू बी नॉन कॉन्टिजियस. ओके, सो चलो विद दिस कॉन्सेप्ट आगे आगे का देख लेते हैं एक बार. So what we are going to do, okay, so imagine this is our main memory. Okay, this is our main memory. Okay, so first statement says divide main memory into equal fixed size chunks. Divide main memory into fixed equal size chunks. Okay, chunks is the word which is used for a small unit. Okay,
because we will hear this particular term at many places. We will hear this term chunk. Okay, this is a very small unit when we have a big unit, and when we divide it into a number of parts. So instead of saying as a part, we call it as a chunk. Okay, so we have divided the main memory into fixed. Okay, what are the three important lines and three important statement in the page? Okay, this is the very important one. It permits physical address space of processes to be non-contiguous. That already we have seen. Okay, same thing we are going to implement in the actual problem. Okay, the second statement says divide main memory into fixed equal size chunk. Okay, तो चलो main memory को भी हम लोग ने divide कर लेना. ठीक है, so we have divided into पहला chunk, दूसरा chunk, third chunk, fourth chunk, पांचवा chunk, sixth chunk, seventh chunk, then eighth chunk, then ninth and then tenth. Okay, तो चलो हमने 10 chunks में divide कर लिया आपकी main memory को. So indexing भी कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so indexing start from 0 and will goes up to 9. Okay, so how many chunks we have total right now? 10 chunks. Okay, and these chunks are called as frames. Okay, so this is again a Viva question. What are frames in paging? Okay, so frame paging में use होता है. So frames क्या है basically? Frames are nothing but the small fixed size chunk, equal size chunk when we divide our main memory into equal size partition. ठीक है, तो partition बोलने के बजाय हम लोग इसको chunks बोलते हैं. ठीक है, so these are the frames. Okay, ये हो गई सेकेंड थिंग. ओके, अब तीसरी चीज, डिवाइड द प्रोसेस इनटू स्मॉल फिक्स साइज चंक. अब क्या करना है, मेन मेमोरी को तो डिवाइड कर दिए, अब भाई साहब हम लोग को प्रोसेस को भी डिवाइड करना. सो द थर्ड पॉइंट आई एम राइटिंग ओवर हियर, डिवाइड द प्रोसेस, डिवाइड द प्रोसेस, डिवाइड द प्रोसेस इनटू स्मॉल, सेम है, इनटू स्मॉल फिक्स्ड साइज chunks. Okay, so for example we have this process p1. Actually I have already taken the example of processes p1, p2 and p3. Okay, so मुझे ज़्यादा आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा. See example, this is the process p1. So we have divided the process into two chunks. We can divide as per the length of the program, sorry, as per the length of a process, you can divide it into number of chunks. If you are having a bigger process, if you are having a large number of lines which has been coded inside the process, then you can divide it into number of chunks. Okay, maybe 2, 3, 4, 5 chunks. Okay, it is up to the process. Okay, so it is not like that कि आपका मतलब ये इस पर डिपेंड है, मतलब आपका ये फुली आपके प्रोसेस पर डिपेंड, द लेंथ ऑफ द प्रोसेस. ओके, so the third thing is we have to divide the process into small size chunks, and these chunks are called as pages. Okay, very important. Okay, frames and page दोनों का रिलेशन कैसे बनता है, that I am going to show you right now. Okay, so दोनों का मतलब समझो, दोनों क्या है एक्चुअली में ये समझो. Okay, these three statements, I want you to remember these three statements. One, it permits, यानी कि paging permits physical address space of processes to be non-contiguous. मतलब अगर आप अभी प्रोसेस को अगर कभी मल्टीपल जगह पर नॉन कॉन्टिग्यूस लोकेशन पर अगर स्टोर करना चाहे तो आप कर सकते हैं. ये आपको परमिशन पहले से मिली है. ठीक है, और ये परमिशन मिली है तभी तो ये आपका नॉन कॉन्टिग्यूस में आता है. ठीक है, इट कम्स अंडर द नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन. समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ तक पहले समझा मुझे बता. फ्रेम्स क्या है और पेजेस क्या है. मेन मेमोरी को डिवाइड किया तो मिल गया हम लोग को स्मॉल चंक्स, एंड दो स्मॉल चंक्स आर कॉल्ड एज फ्रेम्स. प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आपका आएगा, it is not like that only one process will come for execution. Maybe number of processes coming for execution. That we need to handle all the chunks of the respective process. Okay, and we have divided the process. Each and every process will be divided into number of chunks. Okay, so we have to maintain कि भाई कौन किसका बच्चा है, वो बराबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, so we have to divide the process into number of small fixed size chunks, and those chunks will be called as the pages. Okay, एक साइड में है frames, एक साइड में है pages. इतना समझा कि नहीं समझा पहले बताओ, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा. समझा? और बाकी लोग, आप लोग को समझा? चलो बताओ जल्दी से.
ओके, चलो इतना समझा है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आगे। ओके, तो हाँ चलो आगे बढ़ते। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मैं ये यही एग्जांपल लूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा था ताकि मुझे बार बार ये ड्रॉ ना करना पड़े, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए। हेल्थी प्रॉब्लम से मुझे थोड़ा सा टाइम उसमें थोड़ा छोटा कर दो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, इतना काफी है। कंट्रोल वी 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 वी, तो कितने चाहिए हम लोग को? एक दो तीन चार पाँच छः, छः चाहिए। कंट्रोल वी वी। अब इंस्टेड ऑफ ड्राइंग मैं थोड़ा कुछ ऑटोमेट करना, दो मिनट लगेंगे। बट द केस आल्सो वेरी स्मॉल। कितने हो गए भाई साहब? ज्यादा हो गया ना? इक्वल से सो ये आ गया था ऊपर नीचे आया, चलो। सो इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा डायग्राम, ठीक है, ये हमारे मेन मेमोरी, ठीक है। सो दिस इज माय मेन मेमोरी which has been divided into a small number of chunks like say 0 1 2 3। ये मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैं एक बार लिख लूंगा तो फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। 7 9, okay, it means total chunks है हमारे 10, okay। And now afterward I will be calling these chunks as a phrase, okay। So simply I need to say I have divided my main memory into 10 frames, okay। ये हो गया क्लियर पहले। उसके बाद में इमेजिन करो हमारे पास में एक प्रोसेस आया, ठीक है। वो प्रोसेस है हमारे पास में प्रोसेस ए, ठीक है। तो प्रोसेस ए में आया, आई थिंक यहाँ पर कुछ जम्बलिंग ना हो जाए। मैं थोड़ा पीछे आप लोगों को करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ और पीछे इसको करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस ए कम्स फॉर एग्जीक्यूशन, ओके। जब प्रोसेस ए भाई साहब आएंगे तो जाहिर बात है कि अब उनको डिवाइड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल चंक एज पर द commitment what we have made, okay। We have to divide the process, we have to divide the process into small fixed size chunks and those chunks are called as pages, ठीक है। तो मुझे हर प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड द प्रोसेस इनटू पेजेस, ओके। तो सिंपली आई विल बी कॉलिंग इट एज द पेजेस। तो प्रोसेस को चलो मैं डिवाइड करता हूँ, से मैंने इसको 4 चंक्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो मैंने इसको 4 चंक्स में डिवाइड किया। तो ये रहे ऊपर दो और ये रहे नीचे दो, ठीक है। एंड आई विल बी कॉलिंग दोज एज अ A0 A1 A2 because all are the A is the parent one, okay। So and 0 1 2 3 these are the 4 pages or the chunks, okay। So I'll be naming, मैं नामकरण का मैंने ऐसा किया हूँ A0 A1 A2 and A3, okay। So I have divided process A into 4 chunks and those chunks are now pages। So I have total कितने pages? 4 pages, okay। चलो ऊपर बढ़ते हैं। अब इन 4 चंक्स को आपको डिवाइड करना है। अभी फिलहाल कोई नहीं है मेन मेमोरी में, सो इट इज माय राज, ओके। सो पूरी यहाँ पर हुकूमत हमारी है, तो चलो एलोकेट करते हैं। तो A0 को मैंने यहाँ पर एलोकेट किया, A1 को एलोकेट यहाँ पर किया, देन A2 कम्स, देन A3 कम्स। हो गया भाई साहब, चलो। उसके बाद में योर प्रोसेस टू विल कम, सो योर प्रोसेस बी विल कम। सो व्हेन योर प्रोसेस बी विल कम, आराम से ध्यान से अच्छे से समझते हुए चलो, ठीक है। आई एम टेकिंग एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम और सेम एग्जांपल आई हैव टेकन इन माय वीडियो, सो दैट अगर बाद में आप लोग देखें तो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल प्रोसेस बी कम्स फॉर एग्जीक्यूशन। So we have divided according to the length we have divided the process B into 3 chunks, okay। So I'll be calling it as the zero B0 B1 and B2, okay। So total कितने पेजेस है? Only 3 pages, okay। So चलो स्टार्ट करते हैं हमारा। अच्छा आपको मैंने हर डायग्राम अलग अलग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपका हो गया जैसे मैंने यहाँ पर बताया हूँ। पहले A0 A1 A2 A3 को मैंने मैनेज किया। उसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम A0 A1
अच्छा, ये आपको डायग्राम अलग अलग बताएंगे तो अच्छा है, ठीक है, सेम डायग्राम में एकदम, ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप। ओके। ओके। उसके बाद में मेरा प्रोसेस बी, यहाँ पर क्या है, आपका प्रोसेस ए आया है, ठीक है, या आपका प्रोसेस बी आया है, देखो मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। So when process B comes, so we have already divided that process B into three pages. Okay, that is B0, B1, and B2. So let me put that B0, B1, and B2. अभी भी जगह खाली है भाई साहब, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग और आगे, हमारा प्रोसेस सी आता है, ठीक है। प्रोसेस सी कम्स विद द टू चंक्स, प्रोसेस सी कम्स विद टू चंक्स। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस सी आया है, ठीक है। तो प्रोसेस सी मैं लिखते आता हूँ, प्रोसेस सी कम्स विद टू चंक्स। ओके, टू चंक्स मतलब हम लोगों ने इसकी स्ट्रेंथ देखे, उसकी लेंथ देखे, वी हैव डिवाइडेड द प्रोसेस सी इनटू टू चंक, दैट इज C0 एंड C1। ओके, सो हाउ मेनी पेजेस, ओनली टू पेजेस। ओके, तो चलो वापस चलते हैं, प्रोसेस सी कम्स, तो वी हैव A0, we have A1, we have A2, we have A3, and then we have B0, we have B1, we have B2। ओके, सो उस होने के बाद में मैंने C0 C1 क्या थे, C0 और C1 मैंने ऐड कर, इतना इतना भी क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस ए के है, प्रोसेस बी के है, प्रोसेस सी के। अब एक काम करते हैं हम लोग, प्रोसेस बी को जरा कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसेस बी ने आपका क्या कर लिया, कंप्लीट हो गया, एंड इट टेक द एग्जिट, ये या फिर वो अपना कुछ आईओ इनपुट प्रोसेसिंग के लिए गया है, इनपुट मतलब आईओ एक्सेस करने के लिए गया है, या फिर कंप्लीट करके चला गया, ठीक है। तो प्रोसेस बी हैज कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन, कंप्लीटेड में लिखते हैं यहाँ पर कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, तो प्रोसेस बी को हम लोग मारते हैं चौकड़ी, ठीक है। नाउ प्रोसेस बी हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या होगा, नाउ इट इज योर टर्न। देखो, प्रोसेस ए आया, मैं एरो मार्क बता रहा हूँ, प्रोसेस बी आया, प्रोसेस सी आया। ओके, नाउ प्रोसेस बी गया, प्रोसेस बी गया, तो मैं इसको अप मार्क से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। when process B has completed its execution, then how many chunks and how many pages were there for process B, B0, B1, B2 यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब चले गए तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो समवन फ्रॉम योर साइड, क्या चेंजेस आएंगे हमारे मेन मेमोरी के अंदर, अरे बोलो ना, कोई बोलता है क्यों नहीं। अब्दुल समद, जिक्रा, अनस, फरहान, दानियाल, आवाज आ रही कि नहीं मेरी। हेलो, हेलो, अरे इतनी देर बाद क्यों आवाज आ रही है। C0 C1 तो आ गया मैडम, आप बहुत लेट है। C0 C1 तो आ गया, देखो C0 आ गया, C1 आ गया, बट अब मैं बात कर रहा हूँ बी के जाने की बात, बी का वापसी का टाइम हो गया, where B has completed its execution. So now what will happen in my main memory? What will be the situation of main memory? A0 will be as it is because they are executing, still they are executing. A0, A1, A2 and A3 are still executing. B0, B1, B2 has completed its execution. So B0, B1, B2 छोड़ के चले गए, जगह खाली हो गई, memory freeze हो गई, memory release हो गई, and the C0 and C1 are still there. Okay, ये सिचुएशन होगी हमारी मेन मेमोरी की, राइट है, करेक्ट है, बताओ मुझे जल्दी। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो चलो ये बी की सिचुएशन हो गई हमारे पास में, अब आगे की सिचुएशन हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास में आगे सिचुएशन है, हमारे पास में एक प्रोसेस डी है, ठीक है। सपोज वी हैव अ प्रोसेस डी, आई विल बी राइटिंग द प्रोसेस डी ओवर हियर। So process D comes with four chunks, okay, or I mean to say four pages, okay. So I've divided the process D into four, that is D0, D1, D2 and D3, ठीक है। So I have total how many pages, four pages, okay. So process D comes for execution, and I have divided the process D into a number of chunks, that is four chunks, and those four chunks will be four pages, okay. So let me start
putting these pages inside the main memory. Okay, तो चलो डी को हम लोग इंसर्ट करते हैं, ये रहा डी और डी को मैं एरो मार्क बताऊँ. तो A0 is at the same place, A1, then A2, and then A3. They will be at the same location. Okay, and after that, A0, A1, A2, A3. Okay, after that we have C0 and C1. Okay, now we have to in the D. Okay, मतलब D को पहले in करना है. We have to insert or we have to give the space. We have to allocate the 4 pages of process D inside the main memory. Okay, we'll start because मुझे यहाँ पे खाली space दिख रहा है. ठीक है, so I'll be putting the D0 over here, D1 over here, D2 over here. अब जगह नहीं, आगे आगे तो सी, आगे 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 तो सी प्रोसेस की हुकूमत है. क्या करेंगे हम लोग, बोलो क्या करेंगे? At which index you are going to put it? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कहाँ डालेंगे जल्दी बोलो? D0, D1, D2. 9 में. 9 में डालेंगे. So D3 को हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं. तो अब बोलो क्या हुआ? What is the concept? The concept is that we have allocated the space and we have permitted it also. We have permitted the process. We have permitted that the process to be allocated in the main memory. देखो यहाँ पर ये क्या आपका कंटीजियस एलोकेशन है, लेकिन यहाँ से सीधा यहाँ पर भी. ठीक है, बीता हुआ आपका ये नॉन कंटीजियस एलोकेशन. ठीक है, so this is the non, that's why this particular statement is very very important. It permits physical address space of process to be non contiguous. Okay, अगर हम ये परमिट नहीं करते, अच्छा बताओ मुझे, अगर हम ये परमिट नहीं करते तो क्या डी आपका प्रोसेस डी एलोकेट हो पाता? अगर हम एलोकेट नहीं करते तो आपका क्या प्रोसेस डी एलोकेट हो पाता? नहीं एलोकेट. No. ठीक है, और यही चीज आप लोगों ने देखा मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटजीज में, विच कम्स अंडर द कॉन्टिजियस एलोकेशन. तो वहां पर हम लोग का क्या हुआ था, हमने देखे भाई इनफ मेमोरी नहीं है, तो आपने आपने क्या किया फिर? अरे बोलो क्या किया आपने, मुझे बताओ. फर्स्ट पेड में, हाँ आई थिंक फर्स्ट पेड में थे हम लोग. तो यहाँ पर आपका जो P4 था उसके लिए इनफ मेमोरी अवेलेबल नहीं थी, तो क्या किया आप लोगों ने? अरे बोलो क्या किए? हैज टू वेट. क्या लिख के छोड़ दिया हम लोगों ने? हैज टू वेट. तो जब पेजिंग टेक्निक्स हम लोगों ने लाए, तो विद द हेल्प ऑफ पेजिंग टेक्निक नाउ इट इज पॉसिबल टू एलोकेट ईच एंड एवरी इनकमिंग प्रोसेस. ओके, समझ में आ रहा है आपका? इससे लेकर जब हम लोग ने जंप किए पेजिंग पे, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेजिंग? पेजिंग के अंदर हर मेमोरी को, आपके मेमोरी को डिवाइड करने का पर्पस क्या था, एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डिवाइडिंग द प्रोसेस इनटू नंबर ऑफ पेजेस. ओके, नाउ आई थिंक जो समझने वाले हैं वो समझ गए. यहाँ पर इवन ये आपका फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी थी, बट हम लोग इसको एलोकेट नहीं कर पाए थे. प्रोसेस 4 को सिंपली व्हाट वी सेड कि भाई वी डोंट हैव इनफ मेमोरी स्पेस, सो यू विल हैव टू वेट. ओके, सो नो, नॉट इनफ मेमोरी, ये हम लोग ने बोल दिए थे. बट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग नाउ, so it is successfully we have allocated the D0, sorry we have successfully allocated process D inside this one. Okay, हालांकि अगर कभी ये कॉन्टिजियस एलोकेशन होता, वापस देखो, अगर ये कॉन्टिजियस एलोकेशन होता तो क्या इतने स्पेस में हम लोग अपने प्रोसेस डी को एग्जीक्यूट कर पाते? अरे बोलो कर पाते कि नहीं कर पाते? कोई बोलता नहीं है. इतने स्पेस में क्या हम प्रोसेस डी को एलोकेट कर पाते? नहीं कर पाते. वेरी गुड. सो हम इसमें इतने स्पेस में नहीं कर पाते, तो फिर वापस से क्या बोलना पड़ता है हम लोग को? सिंपली हैव टू राइट वन स्टेटमेंट, नॉट इनफ मेमोरी, चले जाओ भाई अभी. ठीक है, अभी जगह नहीं है, बाद में आना. ठीक है, लेकिन हम लोग ने कंटीजियस को नॉन कंटीजियस बनाए. so now it is possible for us to divide the process into number of chunks, that is number of pages. and यहाँ पे स्पेस कितना था? चल भाई 3 का है ना, 3 को यहाँ पे एडजस्ट कर दे. और कहाँ जगह खाली? यहाँ पे. ठीक है, मेरा एक चंक एक पेज मेरा वहां पे एडजस्ट हो गया. काम काम का काम भी हो गया और वेट भी नहीं करना पड़ा. ठीक है, so this is why this paging scheme is very very important for us. I hope कि इतना आप लोग को समझ गया होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एलोकेशन होने के बाद में अब और क्या बताना है आपको? 5 में हो गया काम ना, 3 4 5, तो पहले खाली स्टार्टिंग. Okay, so this is the allocation, this is how the allocation will be done. Okay, and if there will be any other process like, अब अच्छा चलो, अब अगर बात आगे बढ़ती है, और अब आगे बात बढ़ती है प्रोसेस ई आर. ठीक है, तो प्रोसेस ई विल बी हैविंग आई थिंक 2 chunks. Okay, so E0 and E1, but we don't have now you can say that we don't have enough space. Okay,
हो सकता है कि आपका प्रोसेस ए कंप्लीट हो जाए बिकॉज बहुत देर से बैठा है अंदर, ठीक है। A0, A1, A2, A3 will complete their execution and they will release the memory. When they will use the memory, then you can allocate the E0 and E1 at this particular location. Okay, so we have a good option with us. So this is the reason why we have divided the memory into these small chunks. Okay, small chunks. Okay, and this is the reason why we have divided the process into small size pieces. Okay, अब रीजन आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने दोनों को डिवाइड क्यों किया। डिवाइड करने से चीजें जल्दी से जगह जगह एडजस्ट होती है। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आपके पास में एक डब्बा है, सिंपल एक स्टील का डब्बा है, उसमें आप इतने बड़े बड़े अगर पत्थर, इतने बड़े 2 पत्थर अगर आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो, जो कि कैपेसिटी है, लेकिन वो जाएगा नहीं, एक पत्थर जाएगा, दूसरा पत्थर बाहर ही नहीं। अगर आप उन सारे पत्थर को इतने इतने टुकड़े कर लो, वो सारे स्टोन्स को इफ यू डिवाइड इट, इफ यू ब्रेक इट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, स्मॉल पीसेस, और फिर आप एडजस्ट करो तो एडजस्ट हो जाएंगे, बिकॉज उतनी उतनी कैपेसिटी है उसकी और वो हो सकता है, ठीक है। सो ये रीजन है कि व्हाई वी डिवाइड द प्रोसेस एंड मेमोरी इनटू स्मॉल चंक्स. The small chunks of the process are called as pages, and the small chunks of memory is called as frames. Okay, so what we are doing, we are dividing main memory into frames and process into pages. Okay, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, दैट आई वांट टू शो यू। मैं आपको यहीं से बता दूंगा, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पेज टेबल। ओके, यहाँ पे मुझे पहले लिखने टेबल, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पेपर भी आ जाता है, पेजिंग एंड पेज टेबल दोनों मिला के आता है, या कभी कभी पेज टेबल अलग से बार बार क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। तो व्हाट इज पेज टेबल? Page table is simply a mapping between table simply represent the mapping between virtual address and the physical address. समझे या नहीं समझे? बहुत अच्छी बात, चलो देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। See this particular diagram. So let us write down the or let us draw the page table for process A situation, ठीक है। जब हम लोग प्रोसेस A पे सिचुएशन पे थे, when जब हम लोग खाली ये हुआ था बस, ठीक है, when we have allocated only process A was initiated for execution. Okay, so A0, A1, A2, A3 was मतलब के simply allocated the space. We have simply allocated the space for process A and we have divided into 4 chunks, that is 4 pages, A0, A1, A2 and A3. Okay, तो इसके लिए अगर हम लोग पेज टेबल ड्रॉ करेंगे तो सिंपली कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपली हम लोग एक वो बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू मैप द वर्चुअल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस। ओके, सी कहाँ पे हम लोगों ने प्रोसेस ए को कहाँ पे डाला हम लोगों ने, तो प्रोसेस ए को हम लोगों ने, अच्छा सबसे पहले तो पहले देखो ए के कितने चंक्स है, प्रोसेस ए के कितने चंक्स है, कितने पेजेस है, 4 चंक्स है, ठीक है, तो मैंने इसको 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके, और उसकी मैंने इंडेक्सिंग कर दी। दिस इज द पेज टेबल फॉर प्रोसेस ए, ठीक है, पेज इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, ये हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके प्रोसेस ए के जो चंक्स है, जो पेजेस है, वो कहाँ कहाँ पर है ये देखना है, कहाँ कहाँ पर है भाई साहब, A0 0 पर है, A1 1 पर है, A2 2 पर है, A3 3 पर, ठीक है, तो ये आपका जो है ना, मैं सिंपली लिख दूंगा 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये हो गई मैपिंग वर्चुअल एड्रेस की और फिजिकल एड्रेस की। चलो और समझेंगे आप लोग। प्रोसेस बी के लिए आप लोग पेज टेबल लिखिए, ठीक है। हाउ मेनी चंक्स आर देयर इन द पेज टेबल, हाउ मेनी चंक्स आर देयर इन द प्रोसेस बी, प्रोसेस बी इज हैविंग 3 चंक्स, 1, 2, ठीक है, इंडेक्सिंग में करता हूँ, वहां इंडेक्सिंग के लिए वहां नहीं देखने का, 0, 1, 2 इंडेक्सिंग करके, ठीक है। उसके बाद में बताओ प्रोसेस बी के जो चंक्स है, जो पेजेस है, वो कहाँ कहाँ पर है, B0 at 4th index, B1 is at B1 is at 5th index and B2 is at 6th index, okay, तो क्या है 4, 5, 6, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गई, दिस इज द पेज टेबल। ऑन लोग बोला एकदम बड़ा बड़ा वीडियो बना के डालते, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, सिंपली इतना खाली याद रखो आप, so that is done for the page table. Okay, now you tell me page table for C,
पेज टेबल हाउ मेनी चंक्स आर देयर फॉर द सी ओनली 2 चंक्स ओके ओनली 2 पेजेस तो ये हो गया इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 देन 1 ओके नाउ यू टेल मी सी के पेजेस कहाँ पर है सी के पेजेस कहाँ कहाँ पर है बताओ मुझे अरे बताओगे अरे बता भी दो आज 7 8 सेवन और एट पर है सिंपली आई विल राइट 7 एंड 8 ठीक है तो ये हो गया हमारा ठीक है वेरी गुड तो हमारा 7 और 8 हम लोगों ने मैच किया तो दिस इज द वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस की मैपिंग चलो आगे एक और है पीडी दैट इज प्रोसेस डी हाउ मेनी चंक्स आर देयर हाउ मेनी पेजेस आर देयर 4 पेजेस ठीक है तो चलो भैया हम लोगों ने 4 में डिवाइड कर दिए इंडेक्सिंग यू आर गोइंग टू डू द इंडेक्सिंग दैट इज 0 1 2 एंड 3 अभी बताओ 4 5 बताओ 6 9 4 5 6 वेरी गुड सो 4 5 6 9 हो गया 4 ये 5 ये 6 और it shows that this particular page table shows that the allocation is done in the non-contiguous manner. The allocation is done in the non-contiguous manner. 4 5 6 के बाद में 7 आता है नहीं हम लोगों ने इसको 9 पे सेव किया 9 पे स्टोर किया ठीक है so these are the page table for A B C and D respectively okay I hope this is clear so the concepts are very simple just need to गो थ्रू वंस ओके एक बार जिसका आपने एक बार देखा ना तो आई एम श्योर कि आप लोगों को आराम से कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग वी आर गोइंग टू डिवाइड द memory into a number of frames and the process into a number of pages okay and then we are going to assign those pages into those frames okay तो जब आप लोग असाइन करेंगे तो फिर उसमें उसके अंदर we have to make sure that it also permit the physical address space of the processes to be non-contiguous मतलब अलग अलग लोकेशन पे आपको स्टोर कर सकते हैं ओके सो ये इसका डायग्राम एंड द लास्ट वन दिस इज जो हम लोग ने प्रोसेस के चंक्स बनाए थे प्रोसेस के पेजेस बनाए थे वो वाला डायग्राम एंड आफ्टर दैट पेज टेबल ओके ये हो गया हमारा लास्ट टाइम भी हो गया हमारा कॉन्सेप्ट भी हो गया 4 मिनट बाकी 4 मिनट में विल कंप्लीट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओके द नेक्स्ट वन इज सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको है तो बहुत वास्ट और बहुत ही लार्ज वाला मैं आपको उतना बड़ा नहीं बताऊंगा क्योंकि एकदम स्मॉल में आपको बताऊंगा ठीक है ओके when process comes for execution okay the difference between this paging and segmentation is that in paging we are dividing the memory into small size chunks okay chunks इतने 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 में अपने से डिवाइड किया chunks ठीक है तो हो सकता है देखो ध्यान से सुनना सेगमेंटेशन में खाली आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं कॉन्सेप्ट समझो खाली so what happens in the paging in paging we divide the main memory into number of pages okay तो पेजिंग में हो सकता है यहाँ पर आपका हो गया ठीक है मे बी दिस इज अ सी प्रोग्राम ओके यहाँ पे एक सी प्रोग्राम जो कि आपने एग्जीक्यूट किया था और ये एग्जीक्यूशन चल रहा है ठीक है तो इसके अंदर आपका एक फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल सी प्रोग्राम में फॉर एग्जाम्पल आपका एक फंक्शन है दैट इज मेन फंक्शन उसमें एक फंक्शन है ऐड फंक्शन एक फंक्शन है सबट्रैक्ट फंक्शन एक फंक्शन चलो बस इतने इतने रखता है ठीक है हो सकता है कि आपका जो एडिशन फंक्शन है फिर डिवाइड करने की वजह से एडिशन फंक्शन आपका ये वाले चंक में भी चला गया हो और ये वाले चंक में भी चला गया आई एम जस्ट टेलिंग यू इन द सिचुएशन ऑफ पेजिंग ठीक है मैं आपको पेजिंग का कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूँ पेजिंग में क्या हो रहा है ठीक है तो हो सकता है जो आपका एडिशन कॉन्सेप्ट है सो हो सकता है कि आपका जो एडिशन का जो फंक्शन है आपके सी प्रोग्राम में इट हैज बीन डिवाइडेड कॉज ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू नंबर ऑफ पेजेस तो हो सकता है आपका एडिशन का जो फंक्शन है वो ये वाले चंक में चला गया हो ये वाले चंक में चला गया हो और ये वाले चंक में भी चला गया हो सकता बड़ा आपका फंक्शन है तो ये 3 चंक में चला गया ठीक है तो ये जो है ना देखो ये मेन डिफरेंस है पेजिंग और सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन इस चीज का ध्यान रखता है ठीक है ये रही आपकी मेन मेमोरी ये रहा आपका प्रोग्राम ठीक है तो सेगमेंटेशन क्या करेगा सेगमेंटेशन प्रॉपरली बराबर देख दिखाकर ही आपके पार्टीशन बनाएगा यानी कि उसको जो डिवाइड करेगा मेन मेमोरी को वो प्रॉपर देख करेगा फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास में फंक्शन है मेन फंक्शन ऐड फंक्शन सब फंक्शन तो सेगमेंटेशन क्या करेगा सिंपली इट विल मेक
one section, sorry, one segment, and these partitions are called as segment. Okay, सॉरी मैंने आप लोग को नहीं बताया, these are segment. Okay, यहाँ पर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग इनको पेजेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इनको क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पेजेस क्यों बोलेंगे इनको, ये पेजेस नहीं बल्कि ये आपका क्या है, ये आपके Frame. फ्रेम्स है, सॉरी ये आपके फ्रेम्स है। सो वी हैव डिवाइडेड द मेन मेमोरी इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स। ओके, हो सकता है कि आपका ये एडिशन फंक्शन ये 3 फ्रेम्स में आ गया हो, दैट इज मे बी 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 3 और 4 नाम के फ्रेम्स में आपका एडिशन फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटेशन ये जरा इस चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन देखेगा कि ओके भाई आपका प्रोग्राम कहाँ पर है, आपका प्रोग्राम ये, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम में कितने फंक्शन है, एक मेन फंक्शन, ऐड फंक्शन, सब फंक्शन, 1 2 3। ओके, काम करते हैं, आपके प्रोग्राम को हम लोग डिवाइड करते हैं, हमारी मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं 3 सेक्शन में, 3 सेगमेंट में। ठीक है, एक सेगमेंट में डाल देंगे मेन वाला जो विदाउट हैसल फ्री वो एग्जीक्यूट होगा, एक में डालेंगे ऐड वो हैसल फ्री रन होगा, और एक में डालेंगे सब वो भी हैसल फ्री। तो हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर, इफ वी हैव टोटल 3 सेगमेंट्स। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के अंदर सेगमेंटेशन यानी कि डिवाइडेशन ऐसे होता है। ओके, और पेजिंग में सेगमेंट, पेजिंग में डिवाइडेशन ऐसे। ठीक है, so this is the only main concept behind segmentation, that how this particular segmentation is being done. Okay, the the dividation how the dividation is done in the main memory and how the dividation is done in the segmentation. ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम लोग को मेन समझ। ठीक है, पेजिंग ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा बार पूछता है, सेगमेंटेशन बहुत कम पूछता है। ठीक है, स्टिल द कॉन्सेप्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो हेयर वी कंप्लीट, आई थिंक आप लोगों को समझा है, पेजिंग सेगमेंटेशन समझा है, and here we complete the fourth chapter, that is memory management. Okay, so the name was simply memory management. So let me stop over at this particular point and stop the recording also.